والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل القول والعمل. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ایک عنوان یہ بیان فرمایا ہے کہ کہنے اور عمل کرنے سے پہلے جان لینا ضروری ہے. جب تک کہ علم نہ ہوگا نہ قول صحیح ہوگا نہ عمل صحیح ہوگا. اس کے متعلق قرآن مجید میں علم کی فضیلت اور علم دین کی اہمیت کے متعلق جتنی بھی آیتیں ہیں تقریباً آیتوں کا ذکر آپ نے فرمایا ہے. آپ کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 19ویں آیت کریمہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ دے رہا ہے اور اس سے پہلے فرما رہا ہے کہ جان لو. تو پتہ چلا کہ علم کے ساتھ ہی قول ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے. تو علم کے بغیر نہ قول کام آتا ہے نہ عمل کام آتا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے. معبود کا معنی در حقیقت جس کی عبادت کی جائے اور عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہیں کی جا سکتی، اس کو معبود کہتے ہیں. اور ساری کائنات میں ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اسی کی عبادت ہوتی ہے. عبادت کا معنی وہ مفہوم کہ عبادت کہتے کس کو ہے اور عبادت کا طریقہ کیا ہے، یہ کسی کے تراشیدہ کام نہیں ہو سکتے، یعنی کوئی اپنے سے عبادت کا طریقہ بنا نہیں سکتا. عبادت وہی ہوگی جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ عبادت ہے. مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اہم ترین عبادتوں میں سے کہ بندہ اپنا سر جھکائے تو اللہ کے لیے، اور قربانی دے تو اللہ کے لیے، حج کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، حتیٰ کہ وہ اگر نظر مانے تو بھی وہ اللہ کے لیے ہو، جسے ہم منت کہتے ہیں. خیر تو منت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک عرفی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے. شرعی منت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور عرفی کا مطلب لوگ جسے منت کا نام دیتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں نظر نہیں ہوتی. خیر تو عبادت کا طریقہ وہی ہے جو رب نے فرمایا، اور عبادت کا جو طریقہ حضور نے بتایا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. یعنی نماز کسی کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، رکوع کسی کے لیے نہیں کیا جا سکتا، اور سجدہ خاص طور پر کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا. بہرحال کلمہ طیبہ کے تقاضے کو اور اس کے احکام کو جاننا بھی ضروری ہے. دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کا آغاز علم سے فرمایا. اور آپ نے حدیث پاک کا ایک جملہ بھی نقل فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں. حاضرین، اس میں در حقیقت اس امت مسلمہ میں سب سے زیادہ فضیلت والی جو شخصیتیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ ہیں علماء. اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو وارث ہوتے ہیں وہی آپ کے حقیقی امتی ہوتے ہیں. اور وراثت نبی پاک علیہ السلام کی مال و زر کی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، انبیاء کرام کی ہماری یہ جماعت، کہ آپ فرماتے ہیں لا نورث، ہم کسی کو مال و زر کا وارث نہیں بناتے. پھر اس کے بعد فرمایا ہمارا علم ہی وراثت ہوتا ہے. تو اس کائنات میں اگر نبی پاک علیہ السلام سے کسی نے کچھ لیا ہے تو وہ علماء ہیں جو علم دین لیے، یعنی قرآن مجید کا علم، احادیث پاک کا علم. تو ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فرمایا ورث العلم، کہ ان حضرات نے علم کو دوسروں تک پہنچایا اور اس کے وارث بنایا لوگوں کو. من اخذہ اخذ بحظ وافر، یعنی انبیاء کرام سے جس نے علم لیا اس نے پورا حصہ لے لیا. دنیا میں لینے والے لوگ کچھ کم لیتے ہیں، کچھ زیادہ لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر دولت ہے، تو دولت جس کو بھی ملتی ہے کتنی زیادہ کیوں نہیں ملے،
खजाने इलाही के मुताबिक वो कम ही है, लेकिन अंबियाई किराम ने जो दीन लेकर आए और उम्मत तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया, वो दीन अगर किसी ने सीखा तो वो अंबियाई किराम से सब कुछ ले लिया, यानी उसके पास कोई कमी नहीं रही। तो इल्म जिसके पास होता है, जो इल्म सीखता है, वो अंबियाई किराम से पूरा हिस्सा लेने वाला है। फिर फरमाया वमन सलका तरीक़न यतलुबु बिही इल्मन सह्हलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, कि जो आदमी रास्ता चले और इसलिए चले कि उस रास्ता तय करने के जरिए वो इल्म सीखना चाहे, इल्म दीन सीखना चाहे। मिसाल के तौर पर कुछ देर के लिए यूं जान लीजिए कि नमाज मगरिब अदा करने के लिए हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और वहाँ हमको ये पता है कि नमाज के बाद में कोई इल्म की महफिल होती है, दरस हदीस, दरस तफसीर या दरस फिक्र होता है, तो उसके इरादे से अगर जाएंगे, जा रहे हैं तो नमाज की खातिर, लेकिन वो नीयत भी अगर शामिल कर ली जाए तो ये रास्ता जो तय किया जा रहा है ये जन्नत का रास्ता है। तो जन्नत की तरफ आदमी कदम बढ़ाता है जब वो इल्म सीखने के इरादे से निकलता है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ, अल्लाह ताला से उसके बंदों में जो लोग डरते हैं वो सिर्फ उलमा है, यानी खौफ खुदाबंदी उलमा के सिवा किसी और के पास वो मेयार में नहीं होता। हर मोमिन के पास अल्लाह का खौफ होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कितना गुनाहगार मोमिन भी क्यों ना हो, अगर उसके दिल में कलीमे तय्यबा और उसके मानी व मफाहिम जगमगा रहे हैं, वो मोमिन है, अल्लाह ताला की जात पर यकीन है, तो फिर उसके पास खौफ खुदाबंदी भी है। लेकिन अल्लाह ताला से उलमा जितना डरते हैं, खशियत रखते हैं, किसी और के पास वो कैफियत नहीं होती। मिसाल के तौर पर जिसके दिल में जितना इल्म होता है और जितना अल्लाह ताला से डरता है, वो उतना परहेजगार होता है। जैसे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक आता है, आप अपने शागिर्दों के साथ धूप में गुजर रहे थे, कहीं जनाजे के लिए जा रहे थे, नमाज के लिए, रास्ते में जहां जहां बड़े ऊंचे मकान आते उसकी छाव में गुजरते। उस दरमियान में एक और मकान आया, मगर आप उसकी छाव में नहीं गुजरे, रास्ता काट दिए और धूप से गुजरे। फिर आगे चलकर जो मकानात थे उसके छाव से गुजर रहे थे। आपके शागिर्दों ने अर्ज किया कि हजरत आपने उस घर का साया नहीं दिया। तो फरमाते हैं कि वो मेरा मकरूज है, मैंने उसे कुछ पैसे दे रखे हैं कर्ज के तौर पर, मुझे डर हुआ कि मैं उसके घर के साये से गुजरूंगा तो कहीं सूद ना हो जाए, दिए हुए मेरे माल पर कहीं इजाफा नफा लेने का हुक्म न लग जाए, तो इस खौफ से मैं उसके पास से नहीं गुजरा। जितना ज्यादा होता है वो उतना परहेजगार होता है। तो खशियत इलाही का माना यह है कि आदमी परहेजगार होता है, चाहे वो अमली तौर पर हो या कौली तौर पर या कल्ब की कैफियत में। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, तहरीर फरमाई है कि वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, यानी आखिरत का इल्म, आखिरत की समझ सिर्फ आलिमों को होती, यानी जिंदगी के हर कदम में वो आखिरत को अपने पेश नजर रखते हैं, क्योंकि जो जितना ज्यादा जानता है उतना समझदार होता है, उतना परहेजगार भी होता है। सूरह अनकबूत की आयत है। और एक आयत करीमा है, क़यामत के दिन मुशरिकों से पूछा जाएगा और दीगर अफराद से पूछा जाएगा कि हमारे नबी तुम्हारे पास आए, उन्होंने तुम्हें दुनिया आखिरत की बात की, अल्लाह ताला का इल्म दिया, तुमने उन्हें माना क्यों नहीं? तो जब वो कहेंगे क़यामत के दिन, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, वो लोग कहेंगे अगर हम दुनिया में सुनने और समझने वाले होते, सुनने और समझने वाले होते तो अब आखिरत में दोज़ख वाले ना होते। तो पता ये चला कि इल्म जो दुनिया में हासिल होता है वो सुनने से हासिल होता है, समझने से हासिल होता है। इल्म के दो रास्ते जो कुरान मजीद में बयान किए गए। दर हकीकत इल्म जो हासिल होता है वो इंसान के जिस्म के एतबार से 7 एहसासात से होता है, देखना, महसूस करना, सुनना और सूंघना, ऐसे 7 एहसासात हैं, खवास से सबा उसको कहते हैं। उसके जरिए इल्म हासिल होता है किसी भी चीज का, और ये सारे एहसासात इंसान के दिल और उसकी अक्ल को जगाते हैं, तब उसे महसूस होता है, जानने इल्म में आता है कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। मगर दीन और शरा के एतबार से इल्म सीखने के 2 रास्ते हैं, सुनना और समझना। पता ये चला कि इससे
उलमाए किराम ने बयान फरमाया, दलील जो होती है शरीयत में किसी भी चीज को साबित करने के लिए, जैसे नमाज फर्ज है ये बताना है, ज़कात फर्ज है, कैसे मालूम होगा? तो उसकी दो दलीलें हैं, एक दलील शरई होती है और एक दलील अक्ली होती है। दलील शरई में कुरान, हदीस और इजमाए सहाबा और क़ियास, ये चार बुनियादी दलीलें हैं। और दलील अक्ली यानी क़ियास, तो क़ियास के जरिए, क़ियास का मतलब ये होता है कि जो बात कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर नहीं बताई गई उसको अक्ल से समझा जाता है, और अक्ल से जो बातें समझी गई हैं उसका शुमार, उसकी गिनती बहुत ज्यादा है। एक मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से दलील अक्ली यानी क़ियास साबित होता है। मिसाल के तौर पर हाज़िरीन, अगर कोई आदमी रकात बांधे, 4 रकात नमाज की नीयत किया, नमाज के दरमियान में उसे शक हो गया कि मैं कौन सी रकात पढ़ रहा हूं, दूसरी पढ़ रहा हूं या तीसरी पढ़ रहा हूं, याद नहीं आ रहा है, तो शरीयत उसको हुक्म देती है कि वो नमाज में ज्यादा गौर व फिक्र करे। इस गौर व फिक्र को कहते हैं ज़न्ने गालिब। तो उसकी अकल जो ज्यादा बात की तरफ तरजीह दे, यानी उसकी अकल कहे, उसकी याददाश्त कहे कि ज्यादा हो सकता है, ज्यादा तौर पे कि तुम दूसरी रकात में, तो उसी पर अमल कर ले नमाज की हालत में। और ये जो वक्त गौर व फिक्र का है ये ज्यादा लंबा तवील वक्त नहीं, बिल्कुल मुख्तसर हो, तो ज़न्ने गालिब जो बयान करे उसको जो इख्तियार किया जाता है उसी को क़ियास कहते हैं, उसी को दलील अक्ली कहते हैं। ऐसी हजारों मिसालें हैं। बहरहाल इस दुनिया में एक मुसलमान के लिए शरीयत से जो दलील दी जाती है वो शरीई दलील और अक्ली दलील होती है। तो क़ियामत के दिन भी मुशरिक कहेंगे कि काश के हम समझदार होते या फिर सुन लिए होते, यानी नबी की बात मान ली होते, इल्म ना हो तो सुन लिया जाए या फिर अपनी अकल से मान लिया जाए। तो ये दोनों तरीके बयान किए गए। इसमें भी इल्म की अहमियत को बताया गया है, इस सूरह मुल्क की आयत है। और इल्म की अहमियत और फजीलत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने और एक जगह फरमाया, हल यस्तवी लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते बराबर हो सकते हैं? यहाँ जो सवाल कुरान मजीद में किया जा रहा है ये सवाल ताकीद के लिए, यानी जरूर बराबर नहीं हो सकते, या इसको इस्तिफहाम इनकारी भी कहते हैं, यानी बराबर नहीं हो सकते। जानने वाले ना जानने वाले जाहिर है के बराबर नहीं हो सकते। और ये दुनिया के हर शोबे में है, जब हर शोबे में है तो दीन में भी जरूर है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर इलाज जानता है, आम आदमी नहीं जानता, तो जाहिर है कि इलाज के एतबार से डॉक्टर आम आदमी से ज्यादा अच्छा है। वकील कानून जानता है, दूसरे लोग नहीं जानते, तो कानून जानने वाला नहीं जानने वाले से अच्छा है। तो जब दुनिया का कानून जानने वाला ना जानने वाले से अच्छा है तो फिर दीन का कानून जानने वाला ना जानने वाले के बराबर कैसे होगा? तो कुरान मजीद खुद कह रहा है कि जानने वाले ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। अब उसके बाद आपने एक दो हदीसें भी बयान फरमाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह ताला जिसके साथ खैर का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ अता फरमाता है। यानी जिसको कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, मसाइल दीनिया जानता है, माशाअल्लाह वो खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने उसके साथ खैर का इरादा फरमाया है। यानी रब चाहता है कि इस बंदे का भला हो। अब जिस बंदे का भला रब चाहे उसे कोई बुरा नहीं कर सकता। तो इल्म के जरिए खैर मिलता है, तो इल्म सीखना चाहिए। इल्म सीखने के लिए कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, पैदाइश से लेकर मौत तक जहां भी इल्म की महफिलें होती हैं शिरकत कर लेना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ मालूमात में इजाफा हो जाए। और उसके बाद इरशाद फरमाया हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के कुरान मजीद में फरमाया, कूनू रब्बानिय्यीन, कि लोगों तुम अल्लाह वाले हो जाओ, रब्बानी हो जाओ, रब वाले हो जाओ। तो रब वाले कौन होते हैं? इमाम बुखारी फरमा रहे हैं, फुलमा, बर्दाश्त करने वाले, फुक़हा यानी अक्ल वाले, फुलमा अक्ल वाले, फुक़हा समझ वाले, उलमा इल्म वाले। तो अक्ल समझ और इल्म वालों को रब्बानी कहते हैं, यानी वो लोग जिनकी अल्लाह ताला तरबियत फरमाता है इल्म और अक्ल और समझ के एतबार से।
बहरहाल ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म दीन की अहमियत और फजीलत पर चंद अहादीस पाक और आयत करीमा बयान फरमाए। मजीद दूसरी अहादीस शरीफा है, इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में हम आपके गोशे गुजार करेंगे। सवाल वअलमू अन्न फीकुम रसूलल्लाह, ऐ लोगों जान लो कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम में, अंदर का मतलब तुम्हारे दरमियान मौजूद है। इस आयत पाक से दरअसल एक तो आयत पाक का जो बिल्कुल वाज़ेह मतलब है वो सहाबा इकराम के ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के दरमियान थे। हुज़ूर की विलादत शहर मक्का में हुई, बचपन से वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना और आपके अखलाक वगैरह ये सारी उम्र को देखते थे। इसी वजह से सबने कहा था, मुशरिकीन ने भी कहा था कि आप सादिक हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं, सच्चे हैं, झूठ कभी नहीं फरमाते, हमने कभी नहीं सुना। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान फरमाया, वही लोग इनकार कर बैठे। तो उनसे फरमाया अल्लाह ताला ने, जिस नबी को तुम जानते हो कि वो तुम्हारे दरमियान है, कोई नए नहीं है कि कहीं से आए हैं तो आपको तजुर्बा करने की जरूरत पड़े या यकीन करने की जरूरत पड़े, बचपन से देखते हैं कि कैसे पाकबाज हैं। तो उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं फरमाई, फिर अब सच्ची बात अल्लाह का कलाम, अल्लाह का दीन बयान फरमा रहे तो इसको क्यों नहीं मानते। तो उनको झिझोड़ने के लिए एक बात ये फरमाई गई। अब दूसरा, मुफस्सिरीन इकराम ने इस आयत पाक की तफसीर में बाज़ाब्ता ये लिखा है कि हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वाक़ियतन क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा के दरमियान मौजूद हैं। अब कैसे है, कुरान मजीद खुद कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया गालिबन सूरह अनफाल में कि ऐ नबी, जब आप चूंकि मेरे बंदों के दरमियान हैं इसलिए मैं इनको अजाब नहीं देता। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हुजूर आप इनमें हैं इसलिए मैं उनको अजाब नहीं देता। बहरहाल इत्तेफाक है इस बात पर के पिछले जमाने में आम तौर पर अजाब आता था, बस्तियों के बस्तियां हलाक हो जाती थी, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाने से लेकर अब क़यामत तक कोई ऐसा आम अजाब नहीं आएगा। छोटे मोटे गलतियों की वजह से अजाब किसी एक मकाम पर, किसी एक शख्स पर आएगा, लेकिन ऐसा अजाब के बस्तियां बह जाए या हलाक कर दिया जाए या उन पर पत्थर बरसाए जाए या फिर उन्हें जानवर बना दिया जाए, जैसे अजाब पिछले जमाने में आते थे वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और आपके वजूद की वजह से नहीं आएगा। तो ये मफहूम है उसका। तो उम्रा हो या हज, जब उम्रे का तवाफ हो जाए, सफ़ा मरवा की सई हो जाए, उसके बाद 2 रकात नमाज मकाम इब्राहिम के पास अदा की जाती है। उसके बाद में हज और उम्रा करने वालों के लिए एहराम खोलने से पहले उनको बाल निकाल लेना चाहिए। तो जो बाल निकालना है वो 2 तरीके मर्द के लिए, एक तो ये है कि सारा सर मोड़ दिया जाए, पूरे तौर पर बाल निकाल दिए जाए, इसको कहते हैं हलक। तो हलक करना ये सुन्नत है, और कम से कम कसर किया जाए। कसर का मतलब सारे सर के बाल एक उंगल के मुताबिक, 1 इंच के मुताबिक कम से कम निकाले जाए। एक तरफ से कट करने का माना नहीं है। आमतौर पे लोग समझते हैं थोड़े बहुत नीचे से काट दिए तो काफी है। नीचे से थोड़े बहुत काट दिए नहीं जा सकते, बल्कि सारे सर के बाल 1 उंगल के मुताबिक काट दिए जाए। ये 2 तरीके हैं। अगर ये तरीका ना किया जाए तो एहराम से आदमी नहीं निकलता। कपड़े निकाल भी दे, पहन भी ले, सिले हुए कपड़े तो भी नहीं निकलेगा जब तक के या तो सर ना मुंडाए या फिर 1 उंगल के मुताबिक बाल ना काटे। इसको हलक और कसर कहते हैं। यह हज और उम्रे के बारे में मसला यह है कि वो अपने सारे सर के बालों को एक तरफ करके किनारे से 1 उंगल निकाल ले, उससे बढ़ के उनको नहीं निकालना चाहिए। ज्यादा बाल काटना औरतों के लिए दुरुस्त नहीं है, इसलिए 1 उंगल निकालना चाहिए, तो वो एहराम से निकल जाती है हज उम्र के बाद में। सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़्ज़ल सलावातिक व अदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़त ऐन। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िहि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।